Hi guys, hope all of you are doing fine. Welcome to the daily dose of economics at Jatin Verma's IS Academy. Hope all of you are using your time wisely in this lockdown. सभी लोग हो सकता है अपना क्वारंटाइन टाइम या लॉकडाउन टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही वाइजली यूज़ कर रहे हो. Some of you might be investing it in your studies. Some of you might be sharpening their skills of cooking or all of their hobbies. So whatever you are doing, just we will suggest you to do not lose focus from your UPSC dream, and let us continue this learning phase from your homes even if you are not attending any sort of classes. We have started this new series called Daily Dose of Economics at Jatin Verma's IAS Academy, and this series will be mainly dealing with your economic fundamentals, and we will be relating it to the daily news articles which are getting published in all the reliable sources like the Livement, the Indian Express, the Economic Times, Business Standard, Financial Express, and any other source which we will find reliable, and the news from that source is anyhow related to your either your UPSC syllabus, or it is related to enhancing your knowledge. We will be taking up that source, and we will be covering up all the topics which वी फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो कल के सेशन में हम लोगों ने एक आपसे सजेशन मांगा था दैट हाउ शुड वी कीप दिस सेशन. शुड शैल इट बी इन बाइलिंगुअल और शैल इट बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. सो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था वीडियो के, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांटेड इट टू बी बाइलिंगुअल. सो मैं दोनों ही चीज़ों को लेके चलूँगा. आई विल बी कीपिंग इट इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सेइंग कि हिंदी ज़रूर इसमें इंक्लूड कीजिएगा. Some of you people were saying that keep only English. So I understand some people are from far away states, from south or east side. So guys, I will be taking care of all of the people. हिंदी सभी लोगों को नहीं आती है, आई नो, बट सेम वे इंग्लिश भी सभी को नहीं आती है. नॉट एवरी वन नोज इंग्लिश. सो आई विल बी कीपिंग इट बाइलिंगुअल. हिंदी पे फोकस पूरा रखा जाएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा. सो कीपिंग द सागा, कंटिन्यूइंग द सागा फ्रॉम yesterday. Yesterday we discussed about PDS, that is Public Distribution System. If you have still not watched the video, please go to IS Jatin sir's YouTube channel, that is Jatin Verma's IS Academy, and please watch the session 1 of Daily Dose of Economics. Now, before starting, let me take you to the article. This article is taken from the Livement, which says RBI offers mutual funds a breather, opens liquidity window. सी ये आर्टिकल आपका 2-3 दिन से न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइटेड है. RBI से रिलेटेड ये वाली न्यूज़ का 2-3 दिन से काफ़ी हाईलाइट हो रखी है, बिकॉज RBI ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड्स के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी निकाली है और 50,000 करोड़ रुपीज़, विच इज़ ऑब्वियसली अ बिग अमाउंट. बट RBI को ये सब काम क्यों करना पड़ा? वी नीड टू नो अबाउट दिस. See, mutual funds are a part of your Indian financial market, and Indian financial market obviously comes under Indian economy, so it automatically becomes a part of your syllabus. But anyhow, even if mutual funds are directly not related to your syllabus, since RBI is now into the game and RBI has offered a liquidity window, so we have to see what we can do, and how RBI is dealing with the situation. RBI ने ये काम क्यों किया है, हमें ये जानना ज़रूरी है. And since most of the channels, or most of the people don't know much about mutual funds or why RBI is doing it, so we took this article and tried to help you in every way possible. All the suggestions are welcome. If you find something which was not correct, please you can write it in the comment section. We are free to receive criticism or suggestions, whatever you may feel like. So let me take you to this article. Now RBI ने क्या बोला है? RBI ने म्यूचुअल फंड्स को एक ब्रीथर दिया है. RBI ने अपनी एक लिक्विडिटी विंडो खोली है, एंड उसमें वो म्यूचुअल फंड्स की मदद करना चाहता है. सबसे पहली चीज़ मैं इसको पढ़ के बताता हूँ. लेट मी टेक यू टू द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल. द सेंट्रल बैंक ऑन मंडे ओपनड अ 50,000 crore special credit facility to help mutual funds tide over redemption pressures caused by the collapse of 6 Franklin Templeton funds and prevent panicked investors from withdrawing their money in the midst of a crisis.
So what happened was Franklin Templeton Funds was an asset management company in India. It is a global firm which manages asset and provide mutual fund services all over the world. It is present in 25 countries. So what is mutual fund? That is the first question, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि म्यूचुअल फंड ही क्या होते हैं. So I will take you through these terms and I will try to make a balance between all these terms. So mutual funds क्या होते हैं, first things, then redemption reserves, and ये पूरी की पूरी कहानी क्या थी, मैं ये सारी चीज़ें आपको लेके चलूँगा इससे. The RBI moves is primarily aimed at assuring investors that adequate money is available to meet redemption demands and to help the asset managers avoid distress sale of holdings by the mutual funds. Now what happened was, सबसे पहली चीज़ लेके चलते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं. सो म्यूचुअल फंड्स, अ म्यूचुअल फंड इज क्रिएटेड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पुट इन देयर मनी एंड दैट फंड इज मैनेज बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन. से क्या होता है, एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम सारे दोस्त थे एंड हम सब दोस्तों ने क्या किया, कुछ पैसे मिलाए एंड पैसे मिला के हमने उसका एक पूल बना लिया. ठीक है, हमने कलेक्टिवली वी मेड अ पूल ऑफ द फंड्स. We all friends made a fund, and this fund is known as a mutual fund. Now what is the speciality of this mutual fund? It is managed by professionally qualified persons. Why are we saying professionally qualified persons? Because इन लोगों के पास experience होता है. They are quite experienced in terms of investing money in different assets, say property or gold, say shares, debentures, bonds, any or every kind of asset. They invested the money in these kind of funds, and then what they do, these persons form an asset management company. So Franklin Templeton is also an asset management company. Now ये asset management company क्या खुद सारे काम कर लेती है? No, the answer is no. Now this asset management company, the operations of this asset management company are under the guidance of trustees. So इस asset management company के ऊपर भी trustees बैठे होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस asset management company की देख रेख करते हैं. Obviously these people must be very experienced, that's why they are the trustees. So please pay attention, any point you miss, so पूरा का पूरा flow चला जाएगा आपका. So please pay attention. Now mutual funds के features क्या क्या होते हैं? What are the features of mutual funds? First, mutual funds come under money market, but it also has the freedom to operate in the capital market. अब money market और capital market में क्या फ़र्क है? Money market is basically a market where short-term lending and borrowing take place between the cash surplus and cash scarce sides. ठीक है, तो कहीं पे भी दो ऐसी पार्टीज होती हैं जिनके पास, एक पार्टी ऐसी होगी जिसके पास कैश ज़्यादा होगा और एक पार्टी ऐसी होगी जिसके पास कैश कम होगा. सो मनी मार्केट में क्या चलता है कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग और बोरोइंग चलती है. जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो लेंड कर देता है एंड जिसके पास पैसे कम है वो बोरो कर लेता है. सो दैट इज़ मनी मार्केट. नाउ mutual funds can operate under money market, but it also has the freedom to operate in the capital market. Now what is mutual fund? Is mutual fund compulsorily registered with SEBI? Yes, it needs to be compulsorily registered with SEBI. आपको SEBI के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा. ये म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड को कराना पड़ेगा. अब क्या सेबी का होना यहाँ पे ज़रूरी है? सेबी का होना ऑब्वियसली यहाँ पे ज़रूरी है बिकॉज सेबी क्या करता है? सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो सेबी लुक्स आफ्टर ऑल दी शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट्स. नाउ अगर एसेट ये म्यूचुअल फंड जो है वो अगर आपका सेबी से रजिस्टर्ड हो जाएगा तो ऑब्वियसली पीपल विल हैव द फेथ दैट ओके सेबी हैज़ रेगुलेटेड दिस म्यूचुअल फंड कंपनी. सो ऑब्वियसली वी कैन इन्वेस्ट आवर फंड्स एंड वी कैन बी एट ईज कि हाँ हमारा पैसा एक रेगुलेटेड अथॉरिटी है हमारे पास सेबी, जो कि हमारे पैसे पे निगरानी रख रही है और हमारा पैसा इतनी आसानी से डूबने नहीं देगी. नाउ सो म्यूचुअल फंड्स हैव डुअल रेगुलेटर्स, दैट इज आरबीआई एंड सेबी. आरबीआई क्यों? क्योंकि आरबीआई इज द regulator of money market and SEBI is the regulator of capital market or share market or stock market, whatever you want to say. So RBI and SEBI both are the dual regulators of these mutual funds. Now since RBI and SEBI both are involved, so अब क्या हुआ है यहाँ पे? What RBI is doing is RBI is offering this 50,000 crore special liquidity facility to mutual funds because there is a ongoing crisis or there is a fiasco created by Franklin Templeton management company. Okay, so now we will take you to what is the Franklin Templeton fiasco. हुआ क्या है एक्चुअल में, ये समझने की ज़रूरत है before going further. So on April 23rd, Franklin Templeton closed 6 of its open-ended debt funds which manage around 28,000 crore worth of rupees assets. ठीक है, सो हुआ क्या कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी ये अराउंड 28,000 करोड़ वर्थ ऑफ असेट्स को मैनेज करती है अपनी 6 स्कीम्स से, जो कि इन्होंने एकदम से शट डाउन कर दी.
सो ये 6 स्कीम्स अगर इन्होंने एकदम से शट डाउन कर दी तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैनिक होगा, ठीक है। अब ये एकदम से, बिकॉज इसमें लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, सो पैसा इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको वहाँ पे एकदम से पैनिक होगा कि हमारे पैसे के साथ क्या हुआ, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ कोविड-19 जब सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन लॉकडाउन। सो लोगों को एक डर है, एक खौफ है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पहले ही हमारे येस बैंक के साथ एक क्राइसिस हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, पीएमसी वाला क्राइसिस हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ था। सो कुछ ना कुछ होता जा रहा है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्वेस्टर्स क्या हो जाएं, पैनिक हो जाएं, और इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाएंगे तो वहाँ पे फिर दिक्कत वाली बात आपको आएगी। नाउ व्हाट इज डेट फंड? अ डेट फंड इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेटिंग सिक्योरिटीज सच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, government securities, treasury bills, commercial paper, and other money market instruments. These are small topics which I think you should be knowing. If you don't know these topics, we can cover up it in some other day video. Please tell in the comment section if you don't know and if you want us to cover all these topics as well. The fundamental reason for investing in debt funds is to earn interest income and capital appreciation. So ये debt fund क्या होता है, ये जो asset management company होती है, ये ऐसी फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेटिंग सिक्योरिटीज़ में पैसे इन्वेस्ट करती है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिससे कि क्या हो सके, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम हो सके और इनकी कैपिटल बढ़ सके। जब इनकी इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये क्या क्या करेंगे, ये आगे से फिर जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे म्यूचुअल फंड्स पे। सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर का इनडायरेक्टली क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, बिकॉज इन्होंने एक रिलायबल सोर्स में, एक रिलायबल जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए थे। नाउ this has been the first time when trustees have winded up a mutual fund scheme. Is it permitted by SEBI? Yes, it is permitted by SEBI. So क्या कोई म्यूचुअल फंड स्कीम एकदम से बंद की जा सकती है ट्रस्टीज के द्वारा? हाँ, की जा सकती है। सेबी ने अपने जो वाइंडिंग अप जो डॉक्यूमेंट है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कैसे वाइंड अप किया जा सकता है, उसमें कुछ 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि अगर ट्रस्टीज फील करते हैं कि वो किसी स्कीम को नहीं चला पा रहे हैं तो ट्रस्टीज कैन ऑल्सो शट इट डाउन। नाउ what trustees did in this situation, why did they close 6 of their open-ended debt funds? The trustees thought they will not be able to manage the debt funds proactively in the current scenario, so they shut it. उनको लगा कि हम इसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे, सो पब्लिक का नुकसान करने से अच्छा है कि यहाँ पे क्या करो, ये आपकी जो स्कीम है इसको ही बंद कर दो। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, देयर शुड बी अ क्वेश्चन दैट इज द मनी विच पीपल इन्वेस्टेड इन दीज फंड्स, is that money lost? No, the money is not lost. प्लीज़ लिसन केयरफुली। ये जो भी पैसा आपने लगाया था इन फंड्स में, ये पैसा लॉस नहीं हुआ है। इन जो 6 ये जो आपकी स्कीम्स बंद हो गई हैं, इनमें जो पैसा आपका लगा हुआ था, ये पैसा लॉस नहीं हुआ है। इट सिंपली मीन्स दैट मनी इन्वेस्टेड विल नॉट बी बैक टू इन्वेस्टर्स इंस्टेंटली। सो अगर आप चाहो कि मैं ये अपने म्यूचुअल फंड्स का पैसा अभी निकाल लूँ, मैं अभी ये विड्रॉ कर लूँ पैसा सारा का सारा, सो ऐसा नहीं होगा, आपको इंस्टेंटली ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। इट कैन टेक 6 to 18 months और मोर टिल द सिचुएशन गेट्स नॉर्मल। ऑब्वियसली अभी पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। सो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अराउंड 6 to 18 months टिल द सिचुएशन गेट्स नॉर्मल। और उसमें क्या होगा कि आपका ये जो पैसा जिस भी इंसान ने लगाया हुआ है उसको पैसा वापस मिल जाएगा, बट एकदम से अभी नहीं मिलेगा। बट अनदर क्वेश्चन अराइजेज दैट इज इट अ गारंटी कि मैंने जितना भी पैसा लगाया था वो सारा वापस आ जाएगा? इज देयर अ गारंटी दैट वॉट एवर मनी आई इन्वेस्टेड इन दीज 6 schemes विल बी बैक टू मी, एटलीस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी बैक टू मी? इज दैट विल बी अ क्वेश्चन। सो देयर इज नो गारंटी, there is simply no guarantee with which we can say that all this amount will be can come back to the investor. So अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे इनमें से किसी भी स्कीम में, सो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को वो 1 लाख के 1 लाख वापस मिल जाए। हो सकता है यहाँ पे क्या हो कि मेरे को वो पैसे थोड़े कम भी मिलें, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, वो किस वैल्यू पे मैच्योर हुआ, जो असेट लगाई थी अगर उन असेट्स को बेचा गया तो वो असेट कितनी वैल्यू रियलाइज़ करी, वॉट एवर दी असेट्स वर सोल्ड वॉट वैल्यू दे रियलाइज्ड, और वॉट एवर द कमर्शियल पेपर और अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वर हेल्ड टिल मैच्योरिटी, एट वॉट अमाउंट दे वर मैच्योर्ड। सो ऑल दीज थिंग्स शैल बी केप्ट इन माइंड। उसी के बाद क्या होगा, आपका ये पैसा आपके पास वापस आएगा। नाउ going further, what RBI did as a regulator, RBI steps in to
fend off the contagion. Contagion means a wildfire, a kind of wildfire. So अभी क्या हो रहा है, because situation is not normal in the economy, so RBI had to step in and announce this 50,000 crore special liquidity facility for mutual funds to calm investor sentiment in the wake of Franklin Templeton winding up 6 डेट फंड्स. अब हुआ क्या, ये पूरी आपको इमेज क्या कहती है, वी विल टेक अप इट इन द नेक्स्ट स्लाइड वन बाय वन. सो व्हाट डज दिस लिक्विडिटी विंडो मीन्स, विल इट वर्क, क्या होगा. अब ये जो 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने सजेस्ट किए हैं, इनसे होगा क्या, क्या ये पूरे पैसे काफ़ी हैं हमारी इस पूरी प्रॉब्लम से डील करने के लिए. इज द अमाउंट satisfactory to deal with this situation? Now, this is a sentiment boost that the RBI is trying to ensure stability in the market, that it stands ready to provide liquidity if that is what is required to preserve financial stability. Guys, I want your attention on this. Please listen carefully. ये क्या हो रहा है, ये जो भी आरबीआई ने ये अनाउंस करी है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, ये क्या है, ये बेसिकली एक सेंटिमेंट बूस्ट करने के लिए है. पीपल शुड नॉट go into the panic mode and they start withdrawing money from the mutual funds. उस चीज़ को रोकने के लिए and to preserve this financial stability, RBI is trying to help the mutual funds by this liquidity window. Now, since mutual funds have been facing pressure for quite some time since the IL and FS crisis, and this Franklin Templeton issue has made it much worse than it was already. So IL-FS क्राइसिस के बाद से क्या हो रहा था, म्यूचुअल फंड्स पे उंगली उठनी शुरू हो गई थी. एंड उसके बाद क्या हो रहा था कि आपको लोग क्या कर रहे थे, लोगों में एक वो डर था एंड लोगों में क्या था, पीपल हैड ट्रस्ट इश्यूज आफ्टर द IL-FS क्राइसिस, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे भी लोगों का पैसा फंस गया था एंड वहाँ पे भी नुकसान हुआ था लोगों को. सो now RBI has offered 50,000 crore rupees special liquidity line which has been announced for exclusively for mutual funds. This liquidity facility is on tap and open-ended, and banks can submit their bids to avail funding on any day from Monday to Friday. Now we will study it in the next slide and I will get back to you on this last line. Now how this will work. आरबीआई जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है किसका, म्यूचुअल फंड्स का. आरबीआई इज द रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स. नाउ आरबीआई विल गिव दिस 50,000 crore rupees to the commercial banks. RBI has offered this 50,000 crore rupees to commercial banks which needs to be सब्सक्राइब बाय द बैंक्स. ऑब्वियसली बैंक्स इसको लेंगे, बैंक्स अपनी बिड्स देंगे आरबीआई को कि हाँ हम लोगों को कितने कितने पैसे चाहिए, एंड उन बिडिंग्स को ध्यान में रखते हुए व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई विल ऑफर ऑब्वियसली अमाउंट फ्रॉम दिस 50,000 crore rupees टू द बैंक्स. बैंक्स आगे से क्या करेंगे, बैंक्स को अब पहली चीज़ ये बात है कि आरबीआई बैंक्स को ये पैसे देगा, तो आरबीआई किस रेट पे ये पैसे देगा, ऑब्वियसली बिकॉज आरबीआई इज ऑल्सो लेंडिंग टू द कमर्शियल बैंक्स. सो आरबीआई क्या करेगा, बैंक्स कैन अवेल द फंड्स एट करंट रेपो रेट ऑफ 4.4% टिल May 11 और अर्लियर. देखो इसमें क्या रखा गया कि 11 मई तक या उससे पहले, जब तक कि 50,000 करोड़ रुपीज़ पूरे के पूरे कोई सब्सक्राइब नहीं हो जाते तब तक ये स्कीम ओपन रहेगी आपकी. लास्ट डेट बीइंग May 11, 2020. सो बैंक्स कैन अवेल दीज फंड्स एट 4.4% टिल May 11 फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days. तो आपको बैंक्स को क्या मिलेगा, 90 days मिलेंगे, एंड बैंक्स उन 90 days के लिए ये क्या कर सकता है, ये वाला सारा फंड जो 50,000 करोड़ रुपीज़ आरबीआई ने दिया है, ये 90 days के लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं. नाउ what banks will do, banks will lend this amount which they have taken from RBI, they will lend this amount to the mutual funds or can invest it in the commercial paper or debentures or other securities which are issued by the mutual funds to provide some liquidity. So जो भी पैसे म्यूचुअल फंड्स ने लगाए हुए थे इन कमर्शियल पेपर्स या डिबेंचर्स में, बैंक्स क्या करेंगे, या तो उनको लोन दे देंगे, म्यूचुअल फंड्स को लोन दे देंगे, या फिर उनके इन सिक्योरिटीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, सो दैट म्यूचुअल फंड्स के पास क्या हो जाए, कुछ लिक्विडिटी आ जाए, उनके हाथ में कुछ पैसा आ जाए. लिक्विडिटी इज अ बेसिक अकाउंटिंग टर्म विच स्टैंड्स फॉर द मोर कैश यू हैव. ठीक है, सो जितना आपके पास कैश होता है उतना आप क्या होते हो, लिक्विड आपकी पोजीशन मानी जाती है अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ म्यूचुअल फंड्स कैन बोरो अप टू 20% ऑफ देयर असेट अंडर मैनेजमेंट फॉर 6 months. ठीक है, ये AUM स्टैंड्स फॉर असेट अंडर मैनेजमेंट फॉर 6 months. सो म्यूचुअल फंड्स क्या कर सकते हैं, जितना उनके पास से, अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था दैट दिस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाज मैनेजिंग अराउंड 28,000 crore rupees ऑफ द असेट्स. तो 28,000 crore का 20% इज around 5,600 crores. So mutual funds can temporarily borrow around 20% of their asset under management for 6 months from these banks
सो दैट दे कैन हैव दी लिक्विडिटी। सो अगर कोई क्या करेगा, कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसे अपने रिडीम करने आता है या पैसे अपने विड्रॉ करने आता है इस म्यूचुअल फंड फैसिलिटी से, सो बैंक म्यूचुअल फंड्स के पास क्या होगी, लिक्विडिटी होगी उनका पे बैक करने के लिए। नाउ I will take you back to the previous slide which I promised. So this last line, this liquidity facility is on tap and open-ended and banks can submit their bids to avail funding on any day from Monday to Friday. So जो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये जितना भी इनको पैसा लेना है आरबीआई से उस रेपो रेट पे 4.4% के, बैंक्स कैन बिड सबमिट देयर बिड्स टू आरबीआई फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड दिस लिक्विडिटी फैसिलिटी इज ऑन टैप। मीन्स जब भी आपको चाहिए हो आप क्या कीजिए, आप आरबीआई के पास जाइए, बस अपनी एप्लीकेशन दीजिए या जो भी इनका ऑनलाइन सिस्टम होगा, अब तो आई गेस ई कुबेर के थ्रू ये लोग सब्सक्राइब कराएंगे। सो जो भी इनकी फैसिलिटी होगी वो आपकी ऑन टैप है एंड ओपन एंडेड है एंड बैंक्स कैन सब्सक्राइब एंड बिड फॉर दिस अमाउंट। नाउ व्हाट विल हैपन, वाई बैंक्स विल अवेल दिस स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, बैंक्स का क्या फ़ायदा है इसमें, ठीक है, व्हाट विल दे गेट। So banks are not stupid. Why should they invest in such a big amount in this special liquidity fund? Obviously अभी banks के पास क्या है, अभी तो वो लोग लोन भी नहीं दे पा रहे हैं। Even the loan segment is it is very at a very low stage right now. So banks को ये क्या फ़ायदा है इसमें, आरबीआई हैज़ थ्रोन इन वेरियस इंसेंटिव फॉर बैंक्स विच आर, आरबीआई ने ऐसे ही कोई भी स्कीम नहीं निकाली, आरबीआई ने बहुत सोच समझ के बैंक्स को कुछ इंसेंटिव भी दिए हैं जिसकी वजह से क्या होगा, बैंक्स इस स्कीम की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग बीइंग बैंक्स कैन परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर स्टैंड्स फॉर कि कोई भी अगर आपकी सिक्योरिटी है विच इज़ ग्रेडेड AA+, ठीक है, तो इनमें जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो पेपर्स होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, दे आर ग्रेडेड लाइक AA+, सो ऑल दीज इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर्स बैंक्स कैन परचेज फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। Obviously the higher rated investment paper will be the more beneficial it will be. Obviously जितना अच्छा ये grading होगी उतना अच्छा आपको पैसे मिलेंगे। The security investment value can be excluded while calculating priority sector lending. I guess आप सबको पता होगा कि बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स मिले होते हैं एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स को कैलकुलेट करने की जो उनकी वैल्यू जो होती है, ये जो भी इन्वेस्टमेंट कोई भी बैंक अगर करेगा इस 50,000 करोड़ रुपीज़ में से कुछ भी अमाउंट वो लेता है तो वो अमाउंट इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट में से माइनस कर दिया जाएगा, वो इस चीज़ में नहीं रखा जाएगा। नाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स कैन बी हेल्ड टू मैच्योरिटी, दैट इज STM, ओवर एंड अबव द 25% लिमिट दैट नॉर्मली एग्जिस्ट टू कैलकुलेट ANBC एंड मेनी अदर इंसेंटिव्स। अब क्या होता है कि आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारे अदर इंसेंटिव्स तो दिए ही हैं, साथ साथ एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट बैंक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो अ टर्म रिलेटेड टू बैंकिंग। अब ये एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट की जो लिमिट है वो जनरली 25% होती है जो कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, बट अगर बैंक्स कुछ भी इस इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट को इस ANBC से भी बाहर रखा जाएगा, तो ये भी बैंक्स के लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल काम हो सकता है। Last is being banks lending rate to mutual funds will be between 7.5% to 9% depending upon the maturities of paper and schemes. So जो भी पैसे बैंक्स लगाएंगे इन म्यूचुअल फंड्स में, जो भी पैसे लेंड किए जाएंगे इन म्यूचुअल फंड्स को, that will be rated at 7.5% और to 9%. So obviously बैंक्स को किस रेट पे ये आपका मिला था, जो भी फंड्स मिले थे, that was around 4.4%. Now banks are giving it to the mutual funds at 7.5 to 9%. So banks are earning profit of around 3 to 4.5%, but that will depend on the maturities of the paper and schemes. The higher graded the paper will be, the more profit the bank will get and the more facilitated will be the mutual fund company. Now our analysis and conclusion, हमें क्या लगता है, हम वो चीज़ बताते हैं आपको। Since market is already in a not so good situation, we do not know whether this special liquidity facility will prove to be a game changer. अभी obviously economy is in a slowdown, economy is in a lockdown and we don't know how much time it will take before things getting normal. So yes, special liquidity facility will prove to be a game changer or not, this time can only tell. There has been reports of people rushing to redeem their mutual fund investment. Mutual fund investment एक word आया था first slide में, which was redemption pressure. So redemption stands for when people start withdrawing money from the mutual funds.
and redemption pressure is caused when more and more people are going to the mutual fund companies and they are withdrawing their investment. So जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जाके अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में से, सो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिडेम्पशन प्रेशर बोला जाता है. अब क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, रिडीम करना चाह रहे हैं अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को. मोर ओवर दिस आरबीआई लाइफलाइन इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट सिक्योरिटीज विद हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग. ऑब्वियसली जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, जितनी भी अच्छी रेटिंग है किसी भी इन्वेस्टमेंट की, ऑब्वियसली आरबीआई क्या है, उन्हीं सिक्योरिटीज़ के लिए क्या कर रहा है, ये वाली आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है. बैंक्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग ओनली इन हाई रेटेड डेट पेपर्स फ्रॉम फर्म सच एज रिलायंस, लार्सन एंड टोब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा एट्सेट्रा. सो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका क्या है, इन्वेस्टमेंट रेटिंग अच्छी है, जिनकी रेटिंग अच्छी दी गई है, ऑब्वियसली बैंक्स भी उन्हीं के पेपर्स वगैरह सब्सक्राइब करने प्रेफर करते हैं. डिस्पाइट आरबीआईज रिपीटेड लिक्विडिटी इंजेक्शन एंड डीप कट्स इन द बेंचमार्क रेट्स, द रियल प्रॉब्लम विच रिमेन्स इज रिस्क अवर्जन. प्लीज पे अटेंशन. व्हाट इज रिस्क अवर्जन? जितना आप लोग रिस्क ले सकते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क अवर्जन. एंड वी डू नॉट नो इफ दिस इज इनफ टू टैकल दैट. अब ये क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने कि आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, आरबीआई इज ट्राइंग रियली हार्ड कि देयर इज नो सच लिक्विडिटी प्रॉब्लम विद द इकोनॉमी. आरबीआई इज स्टैंडिंग बिहाइंड ईच एंड एवरी फेलियर काइंड ऑफ सिचुएशन, कि आरबीआई उसके पीछे खड़ा रहेगा एंड आरबीआई विल हेल्प यू विद ऑल इट्स माइट एंड फोर्स, that RBI will help you in any kind of situation. But the real problem which remains is risk aversion. We do not know if this is enough to tackle that. So this was all about our this article. Since this article was not explained much in detail at any place, so we tried to cover this article. Hope आप सबको ये article पसंद आया होगा. There can be some confusions regarding this article. Any sort of confusion, any kind of question is welcome. Please write it in the comment section and we will try to get back to you. किसी ने कल वीडियो के नीचे एक कमेंट में पूछा था कि प्लीज़ टेल दी हिंदी सोर्स फॉर दी पीडीएस वीडियो. सो लास्ट वीडियो में जो हमने पीडीएस टॉपिक पढ़ा था उसके लिए हिंदी का सोर्स मांग रहा था कोई इंसान. सो द सोर्स यू कैन डाउनलोड दी बुक फ्रॉम ncrt.nic.in. वहाँ पे आप जाएंगे तो यू कैन सिलेक्ट क्लास 11th और क्लास 12th. सो क्लास 11th में जब आप जाएंगे वहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट इकोनॉमिक्स एज द सब्जेक्ट एंड प्लीज़ सिलेक्ट अर्थशास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है. इकोनॉमिक्स इज नोन एज अर्थशास्त्र इन हिंदी. सो ऑब्वियसली आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा एंड यू कैन डाउनलोड दी बुक फ्रॉम देयर. उसका चैप्टर नंबर 2 था वो पीडीएस वाला, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डील किया था. सो दिस वॉज ऑल गाइज. यू शुड प्लीज़ all the suggestions and criticism is welcome in the comment section. Please give it a thumbs up if it helped you in any way. Please like, share and subscribe to the channel. Also these are the courses which are running on Unacademy Plus, and some courses will be coming out in the coming days. So you can use this Jatin YT71 code to get a 10% discount on Unacademy Plus subscription. Please subscribe to Unacademy Plus and please like and share the video. Please get in touch with all your friends and share this video with everybody whom you think who is preparing for UPSC. We will try to cover more and more topics in the coming days. We will try to be more frequent in uploading the videos. Please stay in touch and keep checking the channel. Also subscribe and press the bell icon. Thank you so much guys. Have a nice day.